Hello students, welcome to MDC Learning. Standard SY BCom, subject auditing, topic types of auditing, statutory auditing. Now students, uh, we are going to study different types of audit in your syllabus. There are different types of audit like statutory audit, non-statutory audit, partnership audit, internal audit, balance sheet audit, partial audit, completed audit. Okay, so many types of audit we are going to study further, but in today's video we are going to study about only statutory audit. So what is statutory audit? As its name indicates, statutory audit is that audit which has been made compulsory by the law. ठीक है, ये एक ऐसा ऑडिट है, स्टैट्यूटरी ऑडिट मतलब एक ऐसा ऑडिट जो कंपलसरी ऑडिट करना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू द लॉ. फॉर एग्जाम्पल, ऑडिट हैज़ बीन मेड कंपलसरी बाय द कंपनीज एक्ट फॉर कंपनीज टू प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, है ना. तो एज पर द कंपनीज एक्ट द ऑडिट इज़ वेरी वेरी कंपलसरी in order to safeguard the interest, okay, in order to safeguard the interest of the shareholders of the company, because see, shareholders are the owners of the company, but the company is managed by the directors and management, correct. So whether to see whether the management is handling all the activities properly, the statutory audit is important in the company as per the companies act. So these shareholders are the owners of the company, but they do not manage the day to day affairs of the company themselves. देखो क्या बोला है यहाँ पे कि जो ओनर्स होते हैं कंपनी के, शेयर होल्डर्स, वो कंपनी को हैंडल नहीं करते, वो कंपनी को मैनेज नहीं करते. तो कंपनी को मैनेज कौन करता है? कंपनी को थर्ड पार्टी मतलब दे मैनेजर्स मैनेज करते हैं, करेक्ट. सो इन ऑर्डर टू नो whether the company is doing all the activities as per law, whether the company is doing all the things legally, it is very very important to conduct the audit, and that audit is known as statutory audit. The shareholders elect the directors who manage the affairs of the company on their behalf. देखो shareholders directors को appoint करते हैं to manage the company on their behalf, बराबर. Besides the employers of the company carry out the orders and policies laid down by the directors of the company. Now ये जो directors जो policies वगैरह बनाते हैं, policies and orders, this is followed by the employees of the company, correct. In order to ensure that the accounts as prepared by the officers and directors of the company show a true and fair view of the financial position of the company, it is necessary to check or audit those अकाउंट्स. देखो क्या बोला है कि ये जो अकाउंट्स इस कंपनी में जो बनता है, इट इज़ डन बाय द ऑफिसर्स और इट इज़ डन बाय द मैनेजमेंट, इट इज़ डन बाय द डायरेक्टर्स, करेक्ट. और ये जो अकाउंट्स है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये कितने ट्रू एंड फेयर है, ये जानना शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करेक्ट. एंड फॉर दैट the audit is made compulsory in the company, and such type of audit is known as statutory audit. Last paragraph. Statutory audit is conducted with the object of checking the accuracy of the accounts of the company, mainly in the organization where ओनरशिप, सॉरी बच्चों यहाँ पे एक स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है, इट इज़ ओनरशिप, ओके, इट इज़ नॉट ओजोनशिप, इट इज़ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज सेपरेट, है ना. तो स्टैट्यूटरी ऑडिट क्यों कंडक्ट किया जाता है? टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स. कंपनी के अकाउंट्स कितने एक्यूरेट है, कितने रिलायबल है, शेयर होल्डर्स उस पर कितना डिपेंड रह सकते हैं, ये जानने के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिटिंग इज डन. यहाँ पे ओनरशिप और मैनेजमेंट इज सेपरेट, है ना. ओनरशिप तो शेयर होल्डर्स के पास होती है, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, बट कंपनी इज मैनेज बाय द डायरेक्टर्स एंड द मैनेजमेंट टीम, करेक्ट. तो यहाँ पे टू नो द एक्यूरेसी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कंपलसरी. सी स्टैट्यूटरी ऑडिट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब फॉर द फॉलोइंग. देखो ये सारे कंपनी में स्टैट्यूटरी ऑडिट करना बहुत ही कंपलसरी है. एक तो कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, दूसरा गवर्नमेंट कंपनीज, तीसरा कॉर्पोरेट इस्टेब्लिश बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, बैंकिंग कंपनीज एज पर बैंकिंग एक्ट 1949, ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज गवर्न बाय द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948. cooperative societies registered under cooperative societies act, societies registered under societies registered act 1860, and public and other charitable trust registered under the trust act 1882. तो बच्चों ये एक्ट में जो भी कंपनीज रजिस्टर्ड की गई है, ये कंपनीज को स्टैट्यूटरी ऑडिट करना बहुत ही कंपलसरी है.
सी साइलेंट फीचर्स ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, इसके फीचर्स क्या है? सबसे पहला, स्टैट्यूटरी ऑडिट हैज़ बीन मेड कंपलसरी बाय द लॉ, है ना। स्टैट्यूटरी ऑडिट एक ऐसा ऑडिट है जो कंपनी को कंपलसरी करना ज़रूरी है। दूसरा, द कंपनीज एक्ट 1956 हैज़ प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर द स्टैट्यूटरी ऑडिट। अब ये जो स्टैट्यूटरी ऑडिट जो करेगा वो ऑडिटर क्वालिफाइड होना चाहिए, है ना। और क्वालिफाइड मतलब उसका क्वालिफिकेशन मेंशन किया है एज पर कंपनीज एक्ट 1956। क्या बोला है कि ही मस्ट बी चार्टर्ड अकाउंटेंट विद इन द he must be characterized accountant within the meaning of the Chartered Accountant Act 1949। मतलब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, है ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन ओनली कंडक्ट द स्टैट्यूटरी ऑडिट। Similarly, the law has laid down the rights, duties and liabilities of the statutory audit। ठीक है, अब ये जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है इसका राइट्स क्या है, इसका ड्यूटीज़ क्या है, ठीक है, इसकी लाइबिलिटीज़ क्या है, इसे एक्चुअली क्या करना है, क्या क्या विच एक्टिविटीज़ ही इज सपोज टू डू, that everything is laid down in the Companies Act 1956। Then a statutory audit is of independent nature, है ना। स्टैट्यूटरी ऑडिट एक इंडिपेंडेंट नेचर है जहाँ पे ऑडिटर खुद ऑडिट करता है और अपना व्यू देता है, अपना ओपिनियन देता है अबाउट द ऑडिट, और उसका ट्रू एंड फेयर रिपोर्ट वो देता है। सो स्टैट्यूटरी ऑडिट इज़ ऑफ इंडिपेंडेंट नेचर। As such, the statutory auditor is required to submit his report to the shareholders। ठीक है, इंडिपेंडेंटली ऑडिटर काम करेगा, ही विल नॉट कम अंडर एनी प्रेशर। वो किसी की जो वो जज करेगा एज पर हिज स्किल्स एंड एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, दैट ओनली ही विल मेंशन इन द रिपोर्ट, बिकॉज ही इज द पर्सन हु विल इंडिपेंडेंटली कैरी आउट द वर्क ऑफ द ऑडिटिंग। बच्चों इसके कुछ एडवांटेजेस भी है। देखो स्टैट्यूटरी ऑडिट का क्या एडवांटेज है। फर्स्ट वन, इट इंक्रीजेज द ऑथेंटिसिटी एंड क्रेडिटेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज एन इंडिपेंडेंट पार्टी, दैट इज द ऑडिटर इज वेरीफाइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक हो जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने ट्रू एंड फेयर व्यू है ये पता चल जाता है स्टैट्यूटरी ऑडिट से। सो इट इज़ वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट। सेकेंड वन, इट कन्फर्म्स दैट मैनेजमेंट हैज़ टेकन ड्यू केयर वाइल डिलीवरिंग देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। करेक्ट, शेयर होल्डर्स को ये पता चलता है कि कंपनी की मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंट है, हाउ एफिशिएंटली दे आर वर्किंग, वेदर दे आर डूइंग देयर वर्क विद देयर प्रॉपर रेस्पॉन्सिबिलिटी, वेदर दे हैव टेकन द केयर वाइल डूइंग द एक्टिविटीज़, वेदर दे हैव डन देयर वेदर दे आर फुलफिलिंग देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो ऑल these things can be come to know with the help of the statutory audit। Then next one is, the auditor also comments on the strength of the organization's internal control and internal checks among the department और segments। करेक्ट, तो ऑडिटर जो है वो इंटरनल कंट्रोल के बारे में भी कमेंट करता है। इंटरनल कंट्रोल मीन्स बच्चों कैसे मैनेजमेंट कंपनी को कंट्रोल कर रही है, हाउ द मैनेजमेंट इज कैरिंग आउट द एक्टिविटीज़, हाउ द मैनेजमेंट इज मैनेजिंग ऑल द थिंग्स, ठीक है, हाउ दे आर कंट्रोलिंग द थिंग्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज़ ओके या इट इज या इट इज़ एक्सीलेंट, ओके, या इट इज़ पुअर, या वहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट्स चाहिए, तो ये कमेंट्स भी ऑडिटर देता है वाइल ड्यूरिंग द स्टैट्यूटरी ऑडिट। इट ऑल्सो सजेस्ट द एरिया वेर इंटरनल कंट्रोल इज़ वीक। देखो जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल वीक है, जहाँ पे चीज़ें प्रॉपर नहीं है, जहाँ पे काम प्रॉपर नहीं हो रहा है, जहाँ पे प्रॉपर प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा है, सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है, एंड प्रोन टू रिस्क, इट हेल्प्स द कंपनी टू मिटिगेट द रिस्क एंड रिजल्ट्स इन द इम्प्रूवमेंट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, है ना। तो जहाँ पे वीक परफॉर्मेंस है, जहाँ पे वीक इंटरनल कंट्रोल है, वहाँ पे द ऑडिटर विल गिव द सजेशंस एंड द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और पर्टिकुलर सेगमेंट विल इम्प्रूव द एक्टिविटीज़ और विल डू द वर्क विथ प्रॉपर एफिशिएंटली। करेक्ट। Then the financial statement of the small company for whom audit might not be applicable get more values if audited। देखो जब स्मॉल कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहाँ पे ऑडिट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे कंपनी का भी अगर ऑडिट हो गया तो इससे क्या होगा, वो कंपनी का दैट वैल्यू will get more value, they will get the more value if their accounts are audited। Then with the help of audited financial statement it becomes easier for the companies to get banking loans। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर ऑडिटेड है तो बैंक लोन्स मिलेगा, बिकॉज अगर कंपनी बैंक के पास लोन लेने जाएगी तो सबसे पहले द बैंक विल आस्क फॉर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड नहीं है दे वोंट गेट द बैंक लोन। ठीक है, तो बैंक लोन इजीली मिल जाएगा एंड अदर टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज ऑल्सो। ऑन प्रोड्यूसिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड
by an independent auditor, loans are easy as the audited statements are more reliable and authentic. देखो लोन्स मिलना बहुत ही आसान हो जाता है अगर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड है तो, ठीक है। एंड बिकॉज ये ऑडिटेड स्टेटमेंट्स पे बैंक क्या करती है, दे डिपेंड ऑन दिस ऑडिटेड स्टेटमेंट्स एंड दे आर मोर रिलायबल एंड दे आर एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक। देन बच्चों इसके साथ साथ हमने एडवांटेजेस तो देखे, बट स्टैट्यूटरी ऑडिट के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज द कॉस्ट एसोसिएटेड विद एन ऑडिट कैन बी वेरी हाई, है ना। स्टैट्यूटरी ऑडिट जो करता है ऑडिटर को फीस पे करनी पड़ती है, तो द कॉस्ट ऑफ द ऑडिट इज़ वेरी वेरी हाई। दूसरा, द एम्प्लॉयज़ might get disrupted for performing their regular work to answer the day-to-day query of the auditor or while providing the auditor with any reports or data required to them. It might result in stretching the work of the employees beyond office hours and may sometimes cause distress among the employees. देखो क्या बोला है कि जब भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑडिट करता है, ठीक है, तो ऑडिटर बहुत सारी चीज़ें कंपनी के एम्प्लॉय के पास मांगता है, ये डेटा दो, वो डेटा दो, ये फाइल दो, वो फाइल दो, करेक्ट। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ के ऑफिस आवर्स बढ़ जाते हैं, उन्हें ज़्यादा टाइम ओवर टाइम काम करना पड़ता है, और कभी कभी एम्प्लॉयज़ डिस्ट्रेस भी हो जाते हैं, है ना, उनको स्ट्रेस हो जाता है। सो दिस इज़ द सेकेंड डिसएडवांटेज ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिट। देन थर्ड वन इज there are inherent limitations of audit, like it has to finish in due time, internal control within the organization, limited power of auditor, etc. One has to understand that auditors are watchdogs. Their reporting is based on the sample data and not the total data. Moreover, as frauds are planned, one सो इट विल बी मोर चैलेंजिंग टू फाइंड। देखो यहाँ पे क्या है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर जब भी ऑडिट करता है तो उसे एक टाइम दिया जाता है पूरा काम करने के लिए, ठीक है, लिमिटेड पावर दी जाती है, लिमिटेड टाइम दिया जाता है। दूसरी बात, जो भी डेटा ऑडिटर को प्रोवाइड किया जाता है, बेस्ड ऑन दैट डेटा ऑडिटर इज़ गोइंग टू ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, करेक्ट। अभी यहाँ पे अगर कुछ फ्रॉड हुआ है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड दैट फ्रॉड फॉर द ऑडिटर, है ना। टाइम भी कम है, पावर भी कम है, अगर फ्रॉड किया है किसी ने तो वो भी ढूंढ के निकालना है, तो इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द ऑडिटर टू फाइंड द अगर प्लान किया हुआ किसी ने प्रॉपर प्लान करके फ्रॉड किया है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द ऑडिटर टू डिटेक्ट दैट फ्रॉड। सो इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग जॉब फॉर द ऑडिटर टू फाइंड आउट द फ्रॉड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. There are many areas in which auditor have no other option than to take representation from management. It is a danger if the management itself is involved in fraud. देखो कभी कभी ऑडिटर्स जो है, ऑडिटर्स को मैनेजमेंट पे ही डिपेंड रहना पड़ता है कुछ भी पूछने के लिए, करेक्ट। इफ़ एनीथिंग एनी प्रॉब्लम दे हैव टू गो टू द मैनेजमेंट, ओके। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने ही फ्रॉड किया है, करेक्ट, तो यहाँ पे ऑडिटर को ऑडिट करना बहुत मुश्किल हो जाती है, फ्रॉड को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाती है, बिकॉज जो मैनेजमेंट है वो भी एक दिखावा करते हैं कि लाइक दे क्रिएट अ गुड पॉजिटिव इमेज इन द फ्रंट ऑफ द ऑडिटर। बट अगर इन्होंने प्लान फ्रॉड किया है तो ये ऑडिटर के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है फ्रॉड निकालना, करेक्ट। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट. Then the auditor does not assess the review the 100% transactions. देखो ऑडिटर ऑडिट करता है लेकिन ऑडिटर 100% ट्रांजेक्शन्स तो चेक नहीं कर सकता ना, इतनी बड़ी कंपनी है, उसके पास टाइम कम है, उसके पास पावर कम है, करेक्ट। तो ही कैनॉट सी ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन. ऑडिटर merely express his opinion on the financial statement and the data provided to him, at no point gives total assurance, है ना। तो ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर सिर्फ अपना ओपिनियन देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने ट्रू एंड फेयर है। जो भी उसको डेटा प्रोवाइड किया जाता है उस डेटा के बेसिस पे वो अपना ओपिनियन देता है, ठीक है। तो ये ओपिनियन उसका गलत भी हो सकता है, बिकॉज ही इज़ नॉट एक्सेसिंग 100% ट्रांजेक्शन्स। वो पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन्स चेक नहीं करता, उसे कुछ ना कुछ सैम्पल्स वो कुछ सैम्पल्स चेक करेगा और वो सैम्पल के बेस पे ही विल गिव हिज ओपिनियन, करेक्ट। तो बच्चों दिस वेर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिट. सो लेट अस सी द कंक्लूजन. देखो कंक्लूजन क्या है, स्टैट्यूटरी ऑडिट इज़ वन ऑफ द मेन टाइप ऑफ ऑडिट. स्टैट्यूटरी ऑडिट एक ऑडिट टाइप है. वी आर गोइंग टू सी मैनी टाइप्स ऑफ ऑडिट, बहुत सारे ऑडिट के टाइप्स है, उसमें से एक टाइप कौन सा है, स्टैट्यूटरी ऑडिट, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट इज़ वन ऑफ द मेन टाइप ऑफ ऑडिट रिक्वायर्ड लीगली टू रिव्यू द एक्यूरेसी ऑफ द कंपनी और गवर्नमेंट फाइनेंशियल अकाउंट्स.
है ना। स्टैट्यूटरी ऑडिट क्यों कंडक्ट किया जाता है? कंपनी का और गवर्नमेंट का फाइनेंशियल अकाउंट्स कितना ट्रू एंड फेयर है, ये रिपोर्ट देने के लिए statutory audit is conducted. It is conducted to gather different information so that the auditor can give his opinion on the true and fair view of the company's financial position as on the balance sheet date. बराबर। तो ट्रू एंड फेयर पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन देने के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट किया जाता है ऑन द बैलेंस शीट डेट. Okay students, I hope you understood this video. Thank you very much.